बट आप लोग इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हैं कि एनटीपीसी रिस्पॉन्सिबल है? इज दैट अ यूनानिमस वर्ड? किसी ने बताया है कि एनटीपीसी को ब्लेम करना है, या आप लोग कुछ पहले देखते आ रहे थे कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, पहले नहीं हुआ, जैसे ही मतलब ब्लास्टिंग जब वो ब्लास्टिंग कर रहे हैं तब हमारे मतलब मिल रहा है। अच्छा, बस वही जिम्मेदार। अच्छा, जब वो ब्लास्ट कर रहे हैं, when they are blasting and this all is shaking and then it is cracking and it is becoming breaking day by day. right? Are you feeling scared? Yes. You're feeling scared, and you have been living on the streets also all night with your mother. Yes. Do you think government is responsible? Do you think do you hope that the government will take some action? I don't think so. Government will take some action because it is having from last year it is being like this and they are not taking any type of action. Right. So Vishnu, this is the situation where on one hand I have a small little girl with me who's a school-going kid. She has been evacuated. In fact, she has to spend 2 nights in this chilly winter with her mother on the street. On my left hand side is a elderly gentleman. He has also been evacuated. One of the 39 families who have been evacuated moved to different to safer locations. But imagine the black and ordinary Vishnu. These families are born and brought up here. They have spent their entire savings on making a hotel, making a house for themselves, and now that house has completely sink, has completely damaged, and there is no government aid which has been provided to them, and they are saying that the sacred town of Joshimath is sinking, and there is no scope, no way these people can come back to their house. So that is the situation on the ground. Even as there is a high level meeting being taken by the Uttarakhand Chief Minister Dhami, who is also expected here on the ground tomorrow. There is no solid help which has been given to the residents as of now, and even on the roads which we are standing right now have massive cracks. So nobody knows the future of Joshimath. One can only hope and expect that the situation remains under control, which as of now doesn't look like it. Vishnu, back to you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. आप घर में कैंडल मार्च निकाले, उसके बाद आप लोगों ने संपूर्ण नोटिस किया सरकार से, यहाँ पर जल्दी से जल्दी किया जाए अस्थायी तौर पे ही, लेकिन किया जाए। लेकिन 60-70 लोग का ही किया गया था। 60-70 का भी नहीं किया गया, मुश्किल से 10-12 लोगों का हुआ। सरकार अब कर रही है, और कल आज हमारा मकान अच्छा, वहाँ पे दरारें आ गई। काट के सब according to the residents, has now become one of the main reasons why Joshimath is gradually sinking. Now, what I'm going to show you is, going to shock our viewers. This is a hotel which is in Malari Age, and you can see that the hotel has inclined towards a different There were 5 houses which have completely now collapsed. One of the houses is of the water collapse. Now the people have been even the agriculture farms have belonged to people. Sir, आप ही का घर है यहाँ पे? अच्छा जी, तो आपको अभी सरकार से इवैक्यूएट करवाया गया है? मुझे नगर पालिका में शिफ्ट किया गया है। हम लोग नगर पालिका में रह रहे हैं, दिल नहीं मानता, फिर हम यहाँ जाके ये तो बहुत भयावह स्थिति है सर। सड़क पे पूरा क्रैक है, बड़े क्रैक है, होटल गिर रहे हैं। मुझे माता जी बता रही थी कि घर भी टूट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जोशीमठ में आप लोग किस तरीके से रह रहे हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, जब से ये एनटीपीसी का टनल बनना शुरू हुआ
तब से ही ये प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा होते रहता था। लेकिन हमें लगा कि लोगों को सबको लगा कि भाई देखिए शायद ये जो है होते रहता होगा। लेकिन उसके बाद इस बार जब ये हेरन मारवाड़ी बाईपास शुरू हुआ और ये टर्नल में छेड़खानी बहुत ज़्यादा छेड़खानी, क्योंकि इनकी मीडियम मशीन जो है बीच रास्ते में 200 साल से, और अब हमने सुना कि वो बिल्कुल उसको दूसरे रास्ते निकालने के लिए छेड़खानी कर रही है। उस वजह से आप कह रहे हैं कि ये हुआ है। अभी तक सरकार ने कोई मदद करी है? ग्राउंड पे कोई है सरकार की तरफ से? कोई मदद हम लोगों को नहीं, ये भी पता नहीं क्या होगा। इससे पहले भी एक बार पानी पूरी जोशीमठ का बंद हो गया था, लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद बड़े पब्लिक मूवमेंट तो अभी सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। And you know, as we speak, I'm the road we are standing on is cracked, and you will not see such cracks on normal roads of cities. गिरने वाले हैं, बस कभी भी गिर सकते हैं, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो आप लोग रात को कैसे रह रहे हैं? इतनी ठंड भी है। ठंड में लोग आग जला के इधर उधर रिश्तेदारों में जहाँ पे थोड़ा सा सुविधा है वहाँ पे रात में सोने के लिए जाते हैं, दिन में फिर अपना खाना पीना बना के सरकार से कोई मदद मिली है? कोई आया है? सरकार से तो कई लोग आए, पर अभी खास उस तरीके की मदद अभी खास नहीं है। आपका गांधीनगर वार्ड है जहाँ घर के गांधीनगर वार्ड में भी घर के वाले हैं, उनमें खराब है। जोशीमठ बचने वाला नहीं है आगे। जोशीमठ बचने वाला नहीं है. That's a statement, you know, Sneha. That's a very strong statement because let's not forget, Joshimठ is not just religiously important for our country. It's also a very sensitive region, very important region for our country. It connects Hemkund Sahib and Badrinath, two of the Char Dhams of our country. And in fact, there was a project which was connecting the 4 dhams, the 4 worship areas, which has now been halted because of the situation which is now unfolding at Joshimठ. But this is scary. Sneha, the roads we are standing on have massive fissures, cracks. लगातार टच में है सीएम धामी के और स्थानीय प्रशासन के, और लगातार रिपोर्ट ली जा रही है। साफ तौर पर है कि किस तरह से ये मामला सामने आया है, लोग दहशत में हैं। और आप इस समय कर्नाटक देख सकते हैं, ये होटल है, 2 होटल हैं। ये एक होटल व्यू है जो कि मल्लारी इन के बगल में है। आप देख सकते हैं कि एक होटल दूसरे होटल से चिपक गया है। इसका मतलब ये है कि सहारा दूसरे होटल का मिला है, क्योंकि दरारें आई हैं और दरारों के कारण ही ये होटल का नुकसान हुआ है। अब इसको पूरी तरह से खाली करा दिया गया, दोनों होटलों को। आप देख सकते हैं कि नीचे पूरी तरह से दरार आ चुकी है, जमीन फट गई है और लोग दहशत में इसके कारण हैं। और मैं कैमरामैन विवेक से कहूँगा कि वो कुछ और तस्वीरें आपको दिखा सके। ये एक और होटल है, वार्म वेलकम। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि तमाम जगहों से दरारें फटी पड़ी हैं और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साफ तौर पर है कि अब लोगों के सामने ये आसानी छोड़ कर के कहीं जाने की जरूरत पड़ रही है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को